اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ میری میاں علی اشفاق صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی آج. رائٹ. اس سے پہلے انہوں نے کبھی میرے سے اس بارے میں بات نہیں کی. وہ پروفیشنل وکیل ہے، آپ کو پتا ہے کہ اچھا نہ وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں نہ ہم ان کے کام میں اچھا مداخلت کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو بتا دوں ذرا. اچھا جی، میں آپ کو بتا دوں ناظرین کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ میاں علی اشفاق صاحب جنرل فیض حمید صاحب کے وکیل تھے اس ملٹری ٹرائل میں. تو اس وقت عمران ریاض بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی بات ہوئی ہے میاں علی اشفاق صاحب سے. تو جی عمران بھائی. اچھا، اس سے پہلے کبھی میں نے پوچھا بھی نہیں، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پروفیشن میں بالکل زیرو مداخلت رکھتے ہیں، کبھی کوئی پوچھتے بھی نہیں. تو آج میں نے اسے فون کیا صبح. میں نے کہا دیکھ، میں آپ کو فون کر رہا ہوں، ایک پروفیشنل لائر کو فون کر رہا ہوں اور میں نے کوئی صحافتی سوالات کرنے ہیں. میں نے کہا جی آپ پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کافی چیزیں پوچھی اور زیادہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ نہیں بتائیں اور کچھ چیزیں میں نے خود سے پھر کنفرم کی. نمبر ایک تو یہ ہے کہ فیض حمید کی فیملی کو یا وکیل کو کسی کو بھی نہیں بلایا گیا فیصلہ سناتے وقت. یعنی جو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے کہ فیصلہ سنانا ہے، کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا ہے ملزم کو جی، اور وہاں پہ فیصلہ سنایا جائے گا سب کی موجودگی میں، رائٹ، کہ آپ کو 14 سال سزا سنائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہوا. دوسرا میں نے پوچھا جی کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. جی، انہوں نے کہا جی اب اس کے اندر 3 قسم کی اپیلیں ہوتی ہیں. جی، ایک اپیل ہے آرمی چیف کے پاس، جی، ایک اپیل ہے ہائی کورٹ کے پاس اور ایک اپیل ہے سپریم کورٹ کے پاس. رائٹ، اور ان کی فیملی کا پہلے دن سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام اپیلیں اویل کریں گے. صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی کیس آگے بڑھائیں گے. رائٹ، تیسرا میں نے یہ پوچھا کہ جی میری دلچسپی صرف سیاست میں مداخلت پہ ہے. مین چیز یہ ہے جی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پورے ٹرائل میں کسی جگہ پہ سیاست میں مداخلت کا معاملہ ڈسکس ہوا؟ جی، انہوں نے کہا جی الزام کے طور پہ یہ گول مول بات سامنے آئی کہ آپ نے سیاست میں مداخلت کی. جی، تو اس پہ فیض حمید صاحب نے پوری ایک لسٹ فراہم کی، جی، سیاستدانوں کی، صحافیوں کی اور بہت سارے اور پردہ نشینوں کی. جی، یہ نام ابھی ہم نہیں لیتے صابر بھائی، رائٹ، ان کو ہم روک لیتے ہیں. لیکن انہوں نے پوری ایک لسٹ فراہم کی. صرف میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ پاکستان کی شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جی، جس کے مین اور بڑے بندے اس لسٹ کے اندر شامل نہ ہو. رائٹ، تمام کے نام فیض حمید نے لکھ کر دیے. حالانکہ پارٹیوں کے سربراہان کے نام بھی لکھ کر دیے کہ بلاؤ انہیں اور بلا کر پوچھو کہ میں نے کس کے ساتھ مل کر کہاں پہ کون سی سیاست میں کتنی مداخلت کی. بلاؤ ان ساروں کو، اور کون کون اس کا بینیفیشری ہے اور کس کس کو کیا ملا اور کس نے کیا کیا. تو اس میں فوری طور پہ جو میری اسیسمنٹ ہے، کیونکہ علی نے یہ بات نہیں کی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی پھر کتنے بندے آئے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندے کو بھی کال نہیں کیا گیا. صحیح، ثبوت کے طور پہ، گواہ کے طور پہ کوئی ایویڈنس اکٹھا کرنا تھا تو ایک بندے کی بھی گواہی نہیں لی گئی. ایک بندے کو بھی دونوں طرف سے نہ تو الزام لگانے والوں کی جانب سے کوئی بندہ پیش ہوا جی، اور نہ ہی جس کے اوپر الزام لگا. ڈیفنس کے طور پہ انہوں نے پوری اپنی ایک لسٹ دی اور اس لسٹ میں بھی ایک بندہ بھی نہیں بلوایا گیا، کسی کو سمن ہی نہیں کیا گیا. رائٹ. تو یہ جو سیاست میں معاملہ کا مداخلت والا ہے نا، جس پہ ہم سارے خوش ہو رہے ہیں جی، کہ ایک جرنیل پھنس گیا باقی بھی پھنسیں گے، نہیں پکی بات ہے نا. جنرل باجوہ بھی لٹکے گا، پھر جنرل ندیم انجم بھی پھنسے گا، جی ہاں، پھر یہ جو ابھی عاصم ملک ہے اور یہ جنرل عاصم منیر ہے، جی ہاں، اور اس کے علاوہ جنرل بابر افتخار ہے، جی ہاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل احمد شریف ہے. جی ہاں، ان لوگوں سے زیادہ تو کسی نے سیاست نہیں کی. بالکل. تو ہم تو خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ اب سارے جرنیل پھنسیں گے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس فیصلے کو خیر مقدم کر رہے ہیں. نہیں ہم تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن صابر بھائی ہماری خوشی ختم ہونے والی ہے نا. جی، جی، وجہ یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے گونگلوؤں سے مٹی جاڑی اور قوم کو بیوقوف بنایا. یہ عاصم منیر صاحب نے اپنا غصہ نکالا ایک جرنیل سے، ان کی ذاتی لڑائی ہے. اس کو سیاست میں مداخلت پہ نشان عبرت بنانا چاہیے تھا جنرل فیض کو، جو انہوں نے نہیں کیا. کسی ایک گواہ کو نہیں بلایا، کسی ایک ثبوت کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ جو پوری لسٹ دی گئی کہ ہاں بالکل سیاست میں جو مداخلت ہوئی اس پر بات کرتے ہیں، فلانے 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 بندے بلا لیں. کوئی بندہ بھی نہیں بلایا گیا. پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان کو بھی کہا گیا کہ بلا لیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بلایا گیا. ایک تو یہ بات آپ کنفرم کر لیں کہ سیاست میں مداخلت پہ فیض حمید کو سزا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے وہ رستہ کھلے گا کہ جس کے بعد باقی جرنیلوں کی گردنیں بھی لٹک جائیں. ایک اور بات
जी हाँ एक पहलू हो गया ना सियासत में मुदाखलत की सजा जी। तो सियासत में मुदाखलत का सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल किया गया हाँ जी व्हाट्सएप के मैसेज में। सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को कोई सजा नहीं दी गई। अगर दी जाती तो कोई उसके कंक्रीट एविडेंस या कोई चीज लगाई जाती। ये सारा मौका जाया किया गया जानबूझकर। इनके पास बड़ा मौका था कि फैज हमीद को ये सियासत में मुदाखलत पे लटकाते, लेकिन उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के, बहुत सारे मौजूदा हुक्मरानों के और बहुत सारे जर्नैलों के कपड़े उतर जाते, इसलिए इन्होंने फैज हमीद को उसमें बचा लिया। अब मैंने 9 मई, कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई में इमरान खान को फंसा दिया जाएगा फैज हमीद के साथ नत्थी करके, लेकिन 9 मई का फैज हमीद के साथ कोई ताल्लुक बनाया ही नहीं गया। मेरी इतला के मुताबिक, मैंने क्योंकि अली से स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा बाद में, ये पहलू रह गया। लेकिन अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फैज हमीद को 9 मई में फिक्स नहीं किया गया। अगर उसको 9 मई में फिक्स करेंगे तो इमरान खान को उसके साथ फिक्स करेंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी जो चीज एक जोड़ी जाती है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। हाँ जी। जिस वक्त फैज हमीद डीजी ISI था तो वो 4, 5, 6, 7 दर्जे नीचे काम कर रहा था इमरान खान के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान के हर सीक्रेट का सबसे बड़ा कस्टोडियन इमरान खान था। अच्छा सर, एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट। जब जनरल फैज हमीद DGC था उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं था। नहीं तब नहीं था। हाँ, उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे। नहीं, लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम बना, हाँ जी, तब जनरल फैज हमीद जो है वो बन गया DG ISI बन गया। यस, लेकिन DG ISI ने अगर कोई चीज वो तो टैक्स की खिलाफ वर्जी की है तो वो उसने अपने तौर पे की है। नहीं सर, नहीं, एक मिनट, हाँ जी, वो इमरान खान को कोई चीज बताता है, DG ISI वजीर आजम को अगर कोई चीज बताता है जी, तो इसमें सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वजीर आजम उसका सीनियर है। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव है जी। वो जो ताकत है वो सारी वजीर आजम के पास है। जी हाँ। तो एक तो ये वाला बयानिया भी उड़ गया, और सीक्रेट एक्ट का जो भाई केस इमरान खान पे होना था वो साइफर वाला होना था, और वो केस रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, निकाल के उसको चाट लें। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है जी, बिल्कुल। फैज हमीद को इन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल रखा है मेरी इतला के मुताबिक, और ये मुझे उनका वकील तो कभी नहीं बताएगा। वकील तो हमेशा अपने जो अली तो मुझे यही कहेगा ना कि बड़ी तकलीफ दी है, बड़ा ये किया वो किया, क्योंकि उसका तो वो क्लाइंट है। लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से साफिर पे जो चेक किया है, इसको उन्होंने बड़ी मैस की सहूलत दी हुई थी। नहीं, वो तो के खाने आ रहे थे। हाँ, वो तो इसको AC भी था, हीटर भी था, कंबल भी था, बेड भी था, टीवी भी था, किताबें थी, अखबार थे, फैमिली भी थी, देखें दोस्त भी थे। फैज हमीद को हर वो एक्सेस मिली है जो नवाज शरीफ को और जरदारी को दौरान जेल मिली है। फैज हमीद को हर सहूलत मिली है जो किसी वजीर आजम को दौरान जेल मिलती है। इमरान खान में और फैज हमीद में ये बहुत बड़ा फर्क रखा गया है। और जनरल आसिम मुनीर ने एक और काम किया है जी, जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है सबने। हाँ जी, आसिम मुनीर ने फैज हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना लिया है। बिल्कुल सही है। ये बात आप सारे अपने ज़हन में रखिएगा कि उन्हें इस बात का पता है कि जो कट्टा वो खोलने जा रहे हैं ना, ये कट्टा बांधा नहीं जाएगा। और दूसरा, ये जो धोखा दिया गया ना कि कट्टा इन्होंने पूरा खोल दिया है, इन्होंने नहीं पूरा खोला। इन्होंने सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद को प्रॉपर तरीके से चार्जशीट किया ही नहीं। राइट, प्रॉपर तरीके से चार्जशीट ही नहीं किया। देखें, एक केस होता है ना, ये अदालत में अगर आ गया, फौज कभी भी नहीं चाहेगी कि ये केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाए। सर, इसमें एक और चीज भी है, फौज कभी भी नहीं चाहेगी। आसिम मुनीर साहब कभी नहीं चाहेंगे, उसका रीजन है, आसिम मुनीर साहब इसलिए नहीं चाहेंगे कि इस केस का जो पॉलिटिकल पहलू है ना, वो जो लिस्ट दी हुई है फैज हमीद ने, वो फिर अदालत में देगा, कहेगा बुलाओ इस सारों को, साबित करो कि मैंने सियासत की है, और किसके साथ मिलकर की है और किसने की है। ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा से ज्यादा सियासत पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, उसने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की, हालांकि ख्वाजा आसिफ बड़ा घटिया लेवल के सियासतदान है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी सारी जिंदगी में उन्होंने इतनी सियासत नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने एक साल में कर दी। और जिस एक साल में जनरल बाजवा ने वो सियासत की, उस एक साल में PDM की सरकार थी और फैज हमीद ISI का हिस्सा नहीं था और उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। तो जनरल बाजवा की गर्दन भी बचाई गई। हाँ जी, जनरल नदीम अंजुम की गर्दन भी बचाई गई। जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जबकि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, इनको भी सेव किया गया। तो सारे जर्नैलों को बचा के, सारे उन शरीफ खानदान पे जनरल फैज के जितने सियासी एहसानात है ना,
उनकी अगर आप लिस्ट बनाए तो सफा खत्म हो जाएगा। सर कोट लखपत में सारी मुलाकातें इन्होंने की थी सर, इन्होंने की और करवाई भी। हाँ। और इसके अलावा इनको जो बाहर के टिकट ला कर दिए, हाँ। इन्होंने कहा कि निकल जाओ पाकिस्तान से, तुम्हारे ऊपर कल गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को बताते थे कल है, किसी को बताते थे परसों गिरफ्तारी है, ये तुम्हारा टिकट है, ये तुम्हारा सिस्टम है, निकलो पाकिस्तान से। तो सबको फरार भी फैज हमीद ने करवाया था। इन्होंने अपने सारे बंदे बचा लिए और कौम को चूना लगा दिया कि जनाब हम जर्नैलों का एहतसाब करने जा रहे हैं। कोई इन्होंने एहतसाब नहीं किया, इन्होंने फ्रॉड किया है। फैज हमीद कल भी कंफर्टेबल था, आज भी कंफर्टेबल है। सियासी मुदाखलत के ऊपर जो जर्नैल को सजा होगी, ये जो हमने ख्वाब देखा था वो नहीं हुआ। देखिए बात ये है कि ये तो जब जजमेंट सामने आएगी तो उसके बाद मजीद कुछ चीज़ें खुलेंगी, लेकिन एक बात है कि ये पहला मौका है कि इन्होंने आईएसआई के चीफ को सजा सुनाई है। अब जो फैज़ हमीद, मेरे इल्म के मुताबिक फैज़ हमीद साहब ने अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ कर रहा था एक चेन ऑफ कमांड के तहत कर रहा था, जो मुझे उस वक्त के डीजी आईएसआई ने कहा और जो उस वक्त के आर्मी चीफ ने हुक्म दिया, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल नवीद मुख्तार साहब, उनके मुताबिक मैंने आगे एक्ट किया और जो कुछ मैं करता था, जो मुझे टास्क दिया जाता था, वो उसको अकॉर्डिंगली मैं करता था, क्योंकि फौज में हुक्म का मतलब है हुक्म। तो लिहाजा उन्होंने इसमें मैं एक चीज हाँ आपको अर्ज करूं, देखें इसमें मैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा मैंने ट्रैवल कर रहा हूं, मैं यहाँ रुकूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। देखें इसमें साबिर भाई एक चीज कंफर्म है, हाँ जी, कि इन्होंने सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में ये गंद मारा है। फैज हमीद को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है, राइट है। फैज हमीद के खिलाफ देखें, मैं जो उसके करप्शन के मामलात हैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके जो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मामलात हैं, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अभी बिग ब्रदर नाम का कोई बंदा है, वो भी यही काम कर रहा था। इख्तियारात में तो ये रोजाना ही नाजायज इस्तेमाल करते हैं, नीचे से ऊपर तक आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ। करप्शन ये सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में, करप्शन कोई नई बात नहीं। मेरी दिलचस्पी थी कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सजा होने जा रही है, और मायूसी मुझे इस बात पे हुई है कि वो सारा मौका इन्होंने जाया कर दिया कि जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सजा नहीं दी, बल्कि उसके लिए ऐसा केस बनाया जिसके अंदर वो बड़े आराम से उसकी गर्दन बच जाए। सर ये एक बात है, मैं जो इसको, आपकी बात सही है, जो इसका पॉजिटिव है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब को मना किया गया था कि आप ये काम ना करें, क्योंकि आप आईएसआई के सरबराह को सजा सुना रहे हैं। इससे हमारे जितने भी एनिमीज हैं उनको बहुत मौका मिलेगा, आप ये हरकत ना करें। लेकिन वो नहीं माने। उसके पीछे जो असल हम मुद्दे की तरफ आते हैं वो है, एक लंदन एग्रीमेंट है, फिर मरी एग्रीमेंट है, फिर जिनेवा है, फिर पहली अपॉइंटमेंट है, फिर एक्सटेंशन है। देखिए शरीफ खानदान की एक बात याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये है कि शरीफ खानदान की ख्वाहिश है कि फैज को लटका दो, तो मुझे नहीं लगता सर नहीं, उन्होंने बड़े एहसानात किए हैं। हाँ, इनका अपना भी है ना। असल मसला ये है, ये असल मसला तो आसिम मुनीर साहब का अपना एक वो ये ना आईएसआई के, जी आईएसआई के ओहदे से क्यों हटाया? बिल्कुल फैज हमीद ने आना था। हाँ जी, तो मामला ये है कि फैज हमीद ने आना था, वैसे भी इनकी शिकायतें बहुत आ रही थी। हाँ जी, मामला ये है कि आसिम मुनीर साहब, इनका जो है ना, ये इमरान खान के मामले में भी जाती इंतकाम है, जी हाँ, और फैज हमीद के मामले में भी जाती इंतकाम है। सियासी जमातें जो है ना वो इस लेवल तक इतना आगे नहीं जाती। सर सियासत में मुदाखलत पे सलाह देनी थी, तो फिर ये चाहिए था ना कि सियासतदान जाकर गवाहियां देते। हाँ जी, लिस्टें सामने आई थी कि भाई ये बंदों से ये बात हुई और चेन ऑफ कमांड में ये अहकामात थे, एक बंदे ने मुझे ये कहा, तो फिर सारों को लटकाते। ये भाईजान सिर्फ इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी है और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है कि जनाब हम एहतसाब कर रहे हैं। ये जाती रिवेंज था, एहतसाब कोई नहीं किया। कौम इससे कोई ऐसी उम्मीद ना लगा ले कि फौज भी अपने अंदर एहतसाब करती है। वो एहतसाब करने से पहले जो अपना वो उन्होंने लिया, आसिम मुनीर साहब ने अपना एक इस्तिस्ना, हाँ जी, वहीं से आपको नीयत का पता चल जाता है कि इनका एहतसाब करने का कितना भी इरादा है। बिल्कुल ठीक है, आप अपना सफर जारी रखें। थैंक यू। तो कल जल्द मुलाकात होती है।